ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੋਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ने। पिछले 2 सालों से थोड़ा दिल्ली रहना ज़्यादा होता है, तो आम आदमी पार्टी के कई एमएलए दिल्ली आते जाते हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने राज्यसभा में नामांकन क्यों किया, क्योंकि यहाँ के एमएलए ने रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब आप आगे आओ। आम आदमी पार्टी के एमएलए ने तुम रिक्वेस्ट की थी? जी, उन्होंने मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आओ। 10 एमएलए नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास करीब मोर देन 60 करीब 68 एमएलए हैं जिनकी पूरी लिस्ट मेरे पास में। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ 68 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 68 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 68 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਕੜਨੀ ਉਤਰਦੀ। 14 तारीख को स्क्रूटनी में मेरा पर्चा पास हो जाने दो। 24 तारीख को पूरा पंजाब जान जाएगा 68 आदमी कहाँ है, किधर है, किसके साथ में। फिर नॉमिनेशन फार्म के ऊपर 10 एमएलए के साइन क्यों, 68 पे क्यों नहीं? भाई साहब, फार्म की जो कॉलम है, फार्म का जो नियम है उसमें यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो 10 आदमियों के नाम और साइन के साथ में फॉर्म जमा कराए। तो 10 की जमा होंगे ना, 60 की कहाँ से जमा कराऊंगा? एमएलए का फ्यूचर की हुआ जी, तो एमएलए का फ्यूचर आम आदमी पार्टी के साथ तो है नहीं। 15 महीने बाद में गारंटी के साथ में 110% गारंटी है कि उनकी टिकट कट रही है, तो वो क्यों आम आदमी पार्टी के साथ में होंगे? तो फिर तुसी केड़ी टिकट दवा दोगे ना? तुसी केड़ी टिकट दवा दोगे? हम टिकट नहीं दे रहे, हम उनको जनता के बीच में बने रहने का मौका दे रहे। किवें? पर हुण आ तुहाडी इंटरव्यू देखण तो बाद सिकंजा होर कस देना उन्हां ने कि भाई लभो किहड़े 68 किहड़े 10 है। सिकंजा तो कैसे गई जी? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਿਆ, 10 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੂੜੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨ ਗਏ ਉਹ ਐਮਐਲਏ। मैं नेता हूँ, मैं मुकदमों से नहीं डरता, न मैं जेल जाने से डरता हूँ, न मैं मुकदमों से डरता हूँ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਨ ਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਮੁੱਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਸਕਣ? बिल्कुल आया हूँ तो जी बिना प्लानिंग के थोड़ी आया। ਪਲਾਨ ਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब है। ਤੇ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਵਾ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ? जो मेरा 14 को पर्चा यदि पास हो जाता है तो 24 तारीख को पूरा पंजाब बदल जाएगा। 24 ਤਰੀਕ को ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਦੂਗੀ? मैं नहीं, एमएलए ਐਮਐਲਏ ਖੁਦ अपने आप। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੋਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇਹ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ 10 ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल जी। ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? बस एकदम बढ़िया जी। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਰ ਦਈਏ ਜਾ ਕੇ? देखो जी, पहले तो पंजाब से 5 साल हो गया मेरा पंजाब लगातार आना जाना। 2020 में मेरी एक किताब आई जियो पॉलिटिक्स,
हिंदी में मैं लिखी और उस किताब का पंजाबी विच ट्रांसलेट हुआ। और करीबन 1 लाख कॉपी मेरी पंजाब के अंदर गई। किसान आंदोलन के अंदर ये किताब मेरी बटी। पंजाब के सारे लाइब्रेरी में, बुक शॉप्स पे मेरी किताब है। तो यहाँ के हर ज़िले में, गांव में, हल्के में जो भी आदमी किताब पढ़ने लिखने का शौकीन आदमी है वो मेरा नाम जानता है, वो मेरी किताब के बारे में जानता है। आप पूरे पंजाब में किसी भी बुक स्टोर पे जाकर के बोलना जी नवनीत चतुर्वेदी की किताब दो, वो आपको कहेगा कि जी अभी किताब का पहला पार्ट ही आया, दूसरा पार्ट अभी नहीं आया। 2022 में जब चुनाव हुए थे तब भी मैं यहाँ पे आया था। पिछली बारी कई कांग्रेस के एमएलए हमारे व्यक्तिगत दोस्त थे, अपने ने उनके चुनाव में कैंपेन भी किया, दोस्ती के नाते किया। वो तकरीबन सारे हार गए। फिर आम आदमी पार्टी वाले की सरकार आ गई। फिर पिछले 2 सालों से अपना दिल्ली रहना ज़्यादा होता है, तो आम आदमी पार्टी के कई एमएलए दिल्ली आते जाते रहे। और जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने राज्यसभा में नामांकन क्यों किया, क्योंकि यहाँ के एमएलए ने रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब आप आगे आओ। आम आदमी पार्टी के एमएलए ने तुम रिक्वेस्ट की थी? जी, उन्होंने मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आओ। और करीबन 10 एमएलए नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास करीब मोर देन 60, करीब 68 एमएलए हैं जिनकी पूरी लिस्ट मेरे पास में है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋ? सारे पंजाब के ही हैं जी, आम आदमी पार्टी के ही हैं जी। और सारे ਇੰਨੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟੋਕਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ 68 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 68 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ? ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 68 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ? अपने बहुत मामूली आदमी है, अपने कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, ना अपने पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति है। अपने पीछे खाली अपनी है। और खाली अपनी शक्ति जो है वो ये है कि जी हमारी ईमानदारी और जो हम जवान के जो पक्के हैं वो कि एमएलएज की जो ग्रीवेंसेज है, आप यूँ समझो कि वो एमएलए की, अकेले एमएलए की ग्रीवेंस नहीं है जी, वो पूरे पंजाब के 3 करोड़ पब्लिक की ग्रीवेंस है। पंजाब के लोगों का जो प्रतिनिधि है वो एमएलए है। एमएलए की ग्रीवेंस ये है कि एसएचओ उनकी बात नहीं सुनता, डीसी उनकी बात नहीं सुनता, एसएसपी उनकी बात नहीं सुनता, सचिवालय में उनकी बात नहीं सुनी जाती, सेक्रेटरी लोग उनकी बात नहीं सुनते, मुख्यमंत्री उनसे मिलता नहीं, केजरीवाल जी उनको ढोर डंगर समझते हैं। एमएलए कहाँ जाए? वो अपने हल्के में जाए तो उसको हल्के की जनता कहती है जी कि एमएलए साहब मेरा काम नहीं हुआ। एमएलए बेचारा क्या काम करा भाई, उसके पास में काम कराने की कोई पावर नहीं है। सारी पावर जो है दिल्ली वालों ने अपने हाथ में ले रखी। अब 15 महीने बाद में चुनाव होने को है। सारे एमएलए को पता है कि उनकी टिकट कटनेगी। कम से कम भी आज आम आदमी पार्टी के 92 एमएलए हैं, तो उसमें से आधे एमएलए को पता है, 45-50 एमएलए कन्फर्म्ड है कि उनकी टिकट कटनी है। 15 महीने बाद में वो लोग पूर्व एमएलए हो जाएंगे। और पूर्व एमएलए हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? उनकी गलती नहीं, दिल्ली वालों की गलती से वो पूर्व एमएलए हो जाएंगे। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ क्यों आउणगे? क्योंकि तुसी केड़ी शक्ति है? मैं फिर वही पूछ रहा। मैं कोई शक्ति नहीं हूँ जी। और आपने कहा कि जी एमएलए जाएंगे तो किसी बड़ी शक्ति के पास में जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो बड़ी शक्ति के पास में गए नहीं। उन्होंने सारी शक्तियों के दरवाजे खटखटा लिए, सारी बड़ी बड़ी शक्तियों के दरवाजे उन्होंने खटखटा लिए, किसी शक्ति ने उनका साथ नहीं दिया। तो अब मैं क्यों आया? क्योंकि मैं जिस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, जनता पार्टी का, आपको याद होगा इमरजेंसी के टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी का अपोज जनता पार्टी ने किया। हमारे फाउंडर थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के बाद में ही 1977 में देश में पहली नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी। और 1977 में पहली बारी पंजाब में जनता पार्टी और अकाली दल की जॉइंट सरकार बनी थी। प्रकाश सिंह बादल जी मुख्यमंत्री बने थे। और उस टाइम 1977 में
पंजाब के अंदर जनता पार्टी के कई सारे मंत्री और विधायक थे। तो जनता पार्टी ने पंजाब को इमरजेंसी के आंदोलन में भी सहारा दिया था। बादल फैमिली से हमारे पुराने ऐतिहासिक रिलेशंस हैं। तो आज उस घटना को आज 45 साल हो रहे हैं, करीब करीब 48 साल हो गए। आज फिर वही हालत है, पंजाब के अंदर वैक्यूम बना हुआ है। तो जो वैक्यूम बना हुआ है, तो जब हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जब आंदोलन किया था, वो तो बिहार के रहने वाले थे जी। उन्होंने पूरे देश में आंदोलन किया था। उन्होंने तो किसी को नहीं कहा जी कि जयप्रकाश जी आप तो बिहार के रहने वाले हो जी, पंजाब में क्यों आंदोलन कर रहे हो या गुजरात में क्यों आंदोलन कर रहे हो। तो बात यहाँ पे पंजाबी नॉन पंजाबी की नहीं हो रही। मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, भारत के हर स्टेट में मैं जा सकता हूँ। और चूँकि हमारी पार्टी ने पंजाब में पहले भी 1977 में सरकार बनाई है, आंदोलन का हमने नेतृत्व किया है, तो आज मैं पंजाब के एमएलएज को अपना नेतृत्व दे रहा हूँ। और मैंने उन्हें कहा कि जी कोई बड़ी शक्ति आपके साथ में नहीं आ रही, आपने सारी बड़ी शक्तियों के दरवाजे खटखटा लिए, तो एक बारी ये जो राज्यसभा का चुनाव है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ ਚ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 68 ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ? ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ? सभी है जी। ਕਿਵੇਂ ਟੱਚ ਚ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ? और के में क्या टच है जी, जैसे आज करीबन 1.5-2 साल हो गए जी हमारे टच में आए हुए। हम तो लगातार हर 2-4 महीने में कभी न कभी, कभी चंडीगढ़ में, कभी दिल्ली में, कहीं न कहीं मिलते ही रहते हैं। नहीं इकट्ठे टच च आ गए या 2-2 4-4 5-5 करके तो बारी बारी से एक साथ ही ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ ਚ ਲਿਆ देखो दीए? जी एक साथ तो 60 एमएलए टच में आएंगे नहीं, आएंगे तो 2-2 4-4 एक-एक करते करते आएंगे ना। तो हो गए धीरे धीरे करके टच में हमारे हमारी व्यक्तिगत उनसे दुआ सलाम है, मित्रता है। तो ये जो मसला है, क्योंकि जो राज्यसभा का जो चुनाव है, जैसे आपने कहा कि अभी तक हमारी स्टेट की हिस्ट्री रही है कि राज्यसभा में यहाँ पे निर्विरोध चुना जाता है। तो मेरा जो राज्यसभा का जो सांसद है, वो पंजाब की जनता का और पंजाब के एमएलएज का एक प्रतिनिधि होता है, जो यहाँ की जनता और यहाँ के एमएलएज की बातों को, उनके मुद्दों को, उनकी मांगों को पार्लियामेंट में उठाएगा। अब आपने तो केजरीवाल जी तो जी सारी राज्यसभा की सीटें बेच देते हैं। अब ये बताओ कि जो इन्होंने अभी तक पंजाब से जितने भी राज्यसभा के आदमी भेजे हैं, वो आदमी पंजाबी होंगे। बेशक हरभजन सिंह जी भी पंजाबी हैं, और आपके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले भी पंजाबी हैं, विक्रमजीत सिंह सानी जी भी पंजाबी हैं। उन्होंने पंजाब के लिए क्या किया? कोई आदमी मेरे को कल कुछ पत्रकार कह रहे थे जी कि आप तो बाहर के हो जी, राजस्थान के हो। तो मैं उनसे पूछता हूँ जी कि ये जो पंजाब वाले जो राज्यसभा वाले हैं, इन्होंने आपके लिए क्या कर दिया? राजेंद्र गुप्ता जी इतने बड़े उद्योगपति हैं, क्या उनसे पंजाब की आम जनता जा कर के मिल सकती है जी कि जी हमारा गुप्ता जी ये काम है जी, जरा पार्लियामेंट में हमारे लिए ये सवाल पूछ के देखना जी? आम जनता तो छोड़ो, पंजाब का जो आम एमएलए है, क्या वो चुनाव के बाद में गुप्ता जी से जा कर के मिल सकता है? गुप्ता जी के बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़े बड़े महल जैसे घर हैं, बेचारा एक नॉर्मल एमएलए, आम एमएलए तो उनके पास में जा भी नहीं पाएगा। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 68 ਐਮਐਲਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 68 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ। बात ये है जी कि 60 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, और 60 या 68 68 एमएलए जो हैं वो हमारे टच में हैं। इन्होंने सारे बड़े दरवाजे खटखटा लिए और पूरी प्लानिंग करी। प्लानिंग का मतलब मेरा ये नहीं है कि ये लोग कोई सरकार बदलना चाहते हो, मुख्यमंत्री बदलना चाहते हो। इनको भगवंत मान से कोई दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत दिल्ली वालों से। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, सारे एमएलए ने दिक्कत दिल्ली वालों से, भगवंत मान से इनको दिक्कत। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? दिल्ली वालों से दिक्कत है जी कि भाई दिल्ली वाले आकर के पंजाब की सरकार चला रहे हैं जी, इन्हों को कोई पूछ नहीं रहा, इनकी ग्रीवेंस है। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ 68 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ? हाँ, तो जी अब जो राज्यसभा का जो चुनाव, देखो हमारे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को 5 साल में एक बारी वोट देने का मौका मिलता है कि भाई आप अपनी सरकार से नाखुश हो, वोट दबाओ और सरकार बदलो। आप अपना
नई सरकार अपनी पसंद की बनाऊं। तो लोकतंत्र में जितना जनता को वोट देने का अधिकार है ना, तो ये भी तो लोकतंत्र है जी। तो ये एमएलए भी तो इस चुनाव में वोटर हैं, इनका भी तो अधिकार है कि अपनी मर्जी से वोट करें। एमएलए का नहीं मन है पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र गुप्ता को वोट देने का। एमएलए ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि वीर जी तुसी आओ और आपने आकर के नॉमिनेशन का फार्म भरो, हम आपके साथ हैं। फिर नॉमिनेशन फार्म के ऊपर 10 एमएलए दे साइन क्यों, 68 ते क्यों नहीं? जी भाई साहब, फार्म की जो कॉलम है, फार्म का जो नियम है, उसमें यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो 10 आदमियों के नाम और साइन के साथ में फॉर्म जमा कराएगा। तो 10 के जमा होंगे ना, 60 के कहाँ से जमा कराऊंगा? नहीं तो पहले जब जितने बद लिखे जान कोई रोक टोक नहीं, वो तो नियम 10 ही लिखे जाने, 10 ही है तो 10 ही लिखे जाएंगे। तो 10 के साथ में हो गया। अब मैं 13 तारीख को सोमवार को नामांकन का एक नया फ्रेश सेट जमा कराऊंगा ताकि नाम खारिज होने की संभावनाएं कम से कम हो। और पंजाब को कई सालों बाद में पहली बारी राज्यसभा के अंदर में वोटिंग का मौका मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जीत जाऊंगा, मैं ये भी दावा नहीं तो जे फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 68 एमएलए ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤੋਗੇ क्यों नहीं? देखो जी, मेरे पास में 60 है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं कौन सी बड़ी शक्ति हूँ। मैं कोई बड़ी शक्ति नहीं हूँ, मैं तो बहुत मामूली सा आदमी हूँ जी। 2 हाथ 2 पैर के साथ में यहीं बैठा हुआ हूँ, आपके सामने अकेला बैठा हुआ हूँ। सरकार एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। सरकार एमएलए को दबा सकती है, दबाव में ले सकती है, धमका सकती है, प्रलोभन दे सकती है, लालच दे सकती है, बहला फुसला सकती है। मेरे पास में क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਸਭ ਜੁਗਾੜ ਦਿਖਾਏ, ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਕੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। 68 एमएलए ਨਾ भाईचारा है। भाईचारा भी आजकल एवं नहीं बनता, भाईचारा है और बिना लालच। ना लालच की है। लालच इसमें केवल इतना ही है कि भाई वो एमएलए चाहते हैं कि उनको अपने हलके में जनता के बीच में काम करने का मौका दिया जाए और उनके काम में दिल्ली वाले अड़ंगी ना लगाएं, उनको काम करने दें। अब एमएलए को ये लगता है कि जी काम तो दिल्ली वाले करने नहीं दे रहे, जनता के बीच में नेगेटिव इमेज किनकी बन रही है जी? एमएलए की। फिर केजरीवाल जी कहेंगे जी कि आपने काम नहीं किया, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है मेरे पास में, आईबी की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, आप चुनाव हार जाओगे, मैं आपकी टिकट काट दूंगा। एमएलए का फ्यूचर की हुआ जी? तो एमएलए का फ्यूचर आम आदमी पार्टी के साथ तो है नहीं। 15 महीने बाद में गारंटी के साथ में 110% गारंटी है कि उनकी टिकट कट रही है, तो वो क्यों आम आदमी पार्टी के साथ में होंगे? तो फिर तुसी किहड़ी टिकट दवा दोगे उन्होंने? तुसी किहड़ी टिकट दवा दोगे? हम टिकट नहीं दे रहे, हम उनको जनता के बीच में बने रहने का मौका दे रहे हैं। किवें? ये जो चुनाव है राज्यसभा का, ये इन पंजाब के एमएलए के वोटर्स का राइट है जी। जो आम आदमी पार्टी वाले अपना राज्यसभा का उम्मीदवार देते हैं और हर बारी इनका उम्मीदवार अनअपोज्ड निर्विरोध जीत जाता है, इसका मतलब यहाँ के एमएलए को वोट देने का मौका तो मिल ही नहीं रहा ना। तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि भाई यहाँ के एमएलए को अपनी मर्जी से वोट देने का मौका मिले। पर वो तो बगावत होगी ना पार्टी। बगावत नहीं हुई भाई। एक एमएलए ने थोड़े दिन पहला बगावत की थी, वो हाले तक फरार है, उसके पर्चे हो रहे हैं। ये बगावत नहीं है जी। हमारे पर आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत मनी जाती है जी। बगावत नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा चुनाव के अंदर में पार्टी विप अप्लाई नहीं होता। कोई भी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो अपने एमएलए को ये नहीं कह सकती कि आपने पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट देना है। पर सारियां पार्टियां ये गल कहंदियां ने, सारियां पार्टियां अंदर खाते ਜਿਹੜੀ नहीं कही गल करदी उन्होंने पार्टी चों भी ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ है? ना संविधान के मुताबिक जो राज्यसभा का चुनाव है उसके अंदर एमएलए अपनी मर्जी से वोट दे सकता है। वो यदि अपनी पार्टी के उम्मीदवार के अलावा किसी और बंदे ने भी वोट देता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ये एंटी पार्टी एक्टिविटी में नहीं आता। नवनीत जी मैं ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ 68 ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 68 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਕੜੇ ਉਤਰਦੀ। 14 तारीख को
स्क्रूटनी में मेरा पर्चा पास हो जाने दो। 24 तारीख को पूरा पंजाब जान जाएगा कि 68 आदमी कहाँ हैं, किधर है, किसके साथ में खड़े हैं। ये ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ स्टेटमेंट दे रहे मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ और मैं ये भी कह रहा हूँ कि पंजाब सरकार पूरी कोशिश करेगी 14 तारीख को मेरा पर्चा खारिज कराने की। सरकार है, सरकार के पास में हर तरह की पावर है। एमएलए को दबाव में लेगी, लालच देगी, प्रलोभन देगी। एमएलए यदि दबाव में आ गए ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੂਗਾ 68 ਐਮਐਲਏ ਤੇ। ना 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 फिर दबाव नहीं रहेगा जी। 24 तारीख को जो वोटिंग होगी, वो जो वोटिंग होगी, वोटिंग में जो एमएलए ने अपना वोट का प्रभाव दे दिया। देखो मेरी बात सुनो, 1975 में जब इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी का प्रभाव था ना, पब्लिक अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती थी। वोट पड़ा, जनता ने वोट दिया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, जनता पार्टी जीत गई। तो जब सुपड़ा साफ हो गया, जनता पार्टी जीत गई, तो अब इंदिरा गांधी का डर किस बात का। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜੇ 68 ਆ ਕਿਹੜੇ 10 ਹੈ। सिकंजा तो कैसे गई जी। मैं उन सारे एमएलए ने ये कहता हूँ कि अपने गुरु महाराज ने भी यही कहा था कि जियो तो जी शेर की तरह जियो। शेर का एक दिन का जीवन होता है, सियार और लोमड़ का 100 दिन का जीवन बेकार है। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ये जो एमएलए हैं 15 महीने बाद में इन्होंने घर बैठ जाना। मैं इनको मौका दे रहा हूँ, 15 महीने बाद में घर बैठना है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਘਰੇ। ना 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 ना, हाँ 15 महीने बाद तो परमानेंट घर बैठ जाओगे ना। हाँ मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ 15 सालों के लिए अपने हल्के में एक्टिव रहने का। वो किवें क्या आप क्या करो आपको वोट डाल दी मेरे को फिर 15 सालों के लिए मौका कैसे मिल गया? बिल्कुल मिला। कैसे? वो आप 24 तारीख को देखना। नहीं मौका वो आप 24 तारीख को देखना। 15 महीने बाद में मैं मेरे एमएलए दोस्तों को जब हम बैठते हैं चाय कॉफ़ी पीते हैं तो यही कहता हूँ कि भाई 15 महीने बाद में तुमने रिटायर हो जाना है, तुम्हारे नाम के आगे लिखा जाएगा भूतपूर्व एमएलए, और भूतपूर्व एमएलए की तुमने पेंशन मिलनी है, और जो तुमने राजनीति करनी है अगले 15 साल तक, तो इस एमएलए के इस राज्यसभा के चुनाव में तुम मुझे वोट डालना। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? मेरे पीछे कोई शक्ति ना है जी, मेरे पीछे कोई शक्ति ना है। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਦੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ परमात्मा ਬੰਦੇ की ਪੱਟੇ? शक्ति है जी, शक्ति परमात्मा की होती है जी, शक्ति और किसी की नहीं होती। ऊपर वाला चाहेगा तो मेरी उम्र 100 साल की होगी, ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो मेरी उम्र 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। तो चाहने वाला तो सारा ऊपर वाला है ना जी, परमात्मा की शक्ति है। 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। बिल्कुल होगा। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, सफल हो जाती है, तो 24 तरीक तक बहुत बड़ा पंजाब पोलिटिकल बदलाव बिल्कुल देखने को मिल सकता है। में क्रिटिकल बदलाव होगा। और मेरे को यूँ लग रहा है कि जो एमएलए हैं वो अपने क्षेत्र में, अपने हल्के में अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनको दिल्ली वाले काम नहीं करने दे रहे, और दिल्ली वाले पूरा प्लान बना करके बैठे हुए हैं कि इन एमएलए को टिकट काट करके घर बैठा दिया जाएगा। एमएलए की कोई गलती नहीं, काम उनको दिल्ली वालों ने नहीं करने दिया। 5 साल बाद में आप उनके टिकट काट दोगे, भाई ये किस बात का न्याय हुआ जी? तो ये जो चुनाव है राज्यसभा का, ये एमएलएज के वोटर्स का, एमएलएज का अपना वोटर्स राइट है। तो जिस तरह से अपने जब विधानसभा की, लोकसभा की चुनाव आती है तो अपन क्या कहते हैं कि भाई आप घर से निकलो, बूथ तक जाओ, चाहे किसी को भी वोट दो, चाहे नोटा पे वोट दबा करके आओ, पर वोट देने जरूर जाओ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ अपन यही कहते हैं ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਿਆ, 10 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੂੜੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨ ਗਏ ਉਹ ਐਮਐਲਏ। देखो जी, आपके कहने से तो होगा नहीं। जो आपने कह दिया, जो मान लो आपने साइन कर दिए और फिर आप कहोगे जी मेरे साइन नहीं है, तो भाई पर्चा काहे में दाखिल होगा? आप उसकी साइन मिलान करोगे, फोरेंसिक होगा, तभी तो अब कोई पर्चा बनेगा ना। नहीं, आपको भी सबूत तो देना ही पड़ेगा ना कोई। हाँ बिल्कुल देंगे, कि इसने साइन किए हैं। बिल्कुल देंगे। अगर नहीं दे सकेंगे, जो तो बंदा आप ही खुद ही कही जाता है कि ये मेरे साइन नहीं है, फिर क्या करोगे? बंदा यदि खुद कहता है कि जी मेरे साइन नहीं है, तो उनका नसीब है जी। वो नहीं, आपका नसीब है, वो 15 महीने बाद ऊपर पर्चा दर्ज होगा। तो मेरे पर्चे देखो, मैं नेता हूँ, मैं मुकदमों से नहीं डरता।
न मैं जेल जाने से डरता हूँ, न मैं मुकदमों से डरता हूँ। मैं 15 महीने बाद में घर नहीं बैठने वाला। मैं आज भी यहीं बैठा हूँ, आज के 15 साल में भी यहीं बैठा रहूँगा, और मालिक ने चाहा तो अगले 30 साल तक भी यहीं बैठा रहूँगा। पर वो जो 68 MLA हैं वो 15 महीने बाद में घर बैठ जाएंगे। उनकी पर मैनू तो ਤੁਹਾਡਾ डर है ना भी ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ? मेरे को डर नहीं, मेरे को डर नहीं। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, MLA ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਨ B ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ MLA ਮੁੱਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਸਕਣ? बिल्कुल आया हूँ तो जी बिना प्लानिंग के थोड़ी आया। ਪਲਾਨ B ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? प्लान B, प्लान C, प्लान D सब है। ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਾਰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? हवा च डांगा था नहीं नवनीत चतुर्वेदी? इंटरव्यू तो आप मेरे का 14 नाल भी करोगे, और 14 को जो आपने मेरे साथ में इंटरव्यू कर लिया, देखो मैं बताऊं आपको, 14 को यदि मेरा पर्चा खारिज हो गया तो कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। जो मेरा 14 को पर्चा यदि पास हो जाता है तो 24 तारीख को पूरा पंजाब बदल जाएगा। 24 तारीख को सरकार डिग दूंगी? मैं नहीं, MLA खुद अपने आप ही। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ। ना 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 कौन, देखो 14 तारीख को दोबारा रिपीट करता हूँ, 14 तारीख को जो मेरा पर्चा खारिज हो गया तब तो कोई नहीं, अपन अपना बैग उठा करके यहाँ से वापस चले जाएंगे, बात खत्म हो गई। जो 14 तारीख को मेरा पर्चा पास हो गया, 24 तारीख को पंजाब पूरा 360 डिग्री बदल जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। ਆਪਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਫਿਰ? और मैं 25 को यही मिलूंगा, 26 को भी यही मिलूंगा। ਜੇ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਫਿਰ? बदल जाएगा। प्रॉमिस? पक्का? प्रॉमिस। देख लो। प्रॉमिस। ये इंटरव्यू जब देखेंगे, पंजाब की जनता देखेगी, पंजाब की सरकार देखेगी, तो समझ जाएंगे कि चतुर्वेदी क्या कह रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार अपना 100 मतलब सरकार अपना 200% जोर लगाएगी कि चतुर्वेदी का पर्चा खारिज करो। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ? मेरे से नहीं, MLA से डर के। मैं तो मामूली आदमी हूं। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ, ਜੇ MLA ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਸੱਟਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ना 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 ना, हाँ, फिर मेरा पर्चा यदि एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फूटे MLA के जी, वो अपना 15 महीने बाद में घर बैठेंगे जी, मैं अपना दूसरा काम देखूंगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤਾਂ सलाह क्या देती है जी, मैं तो MLA की डिमांड पे आया हूँ जी यहाँ पे। MLA ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪ? बोला जी वो रिक्वेस्ट करिए थी। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਖੜਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? आप ये बताओ, मैं 6 तारीख को पर्चा दाखिल किया, आज तक एक भी MLA ने स्टेटमेंट दे करके मना किया कि जी चतुर्वेदी यहाँ पे क्यों आया, किस लिए आया, हमने तो नहीं बुलाया, काम में आया, कोई नहीं बोला ना। पंजाब सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ भी कोई मुकरिया नहीं। देखो जी, ना तो आम आदमी पार्टी ने ना पंजाब सरकार ने कुछ बोला कि जी चतुर्वेदी क्यों आया, किस लिए आया, हमने तो नहीं बुलाया, हमने तो इनवाइट नहीं किया, या हमने तो अपना नाम नहीं दिया इसको, कोई नहीं बोला ना। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵਾਸਤੇ। मेरे को बेस्ट ऑफ लक दी, पंजाब की जनता को बेस्ट ऑफ लक है जी। 68 MLA को बेस्ट ऑफ लक है, उनके फ्यूचर का सवाल है। मेरा तो फ्यूचर है ही, मैं तो यहाँ से उठ करके फिर दिल्ली चला जाऊँगा। मेरा बेस्ट ऑफ लक नहीं है, ये पंजाब की जनता का बेस्ट ऑफ लक है। 68 MLA जो MLAs हैं जो सरकार से नाराज़ हैं, जिनकी टिकट कटने वाली है, उनकी अपनी गलती से नहीं, दिल्ली वालों की दादागिरी से उनकी टिकट कटने वाली है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। ਚਲੋ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਜੇ 14 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 25 ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ 24 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। कोई बात नहीं जी, देखो अपन भागने वाले आदमी नहीं है, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो। 14 तारीख भी होगी, 24 भी होगी, 25 भी होगी, नवनीत चतुर्वेदी भागने वाला आदमी नहीं है, वो आपको मिलेगा ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। दावे के नाल। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ
ਅਧੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ना, ਵੀ ना, ਬਹੁਤ एकदम- ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ एकदम- ਨੇ। एकदम साफ गल्ला करी जी, मैं तो कोई आधी अधूरी बात ही ना करी। मेरे से बढ़िया साफ सुथरा बोलने वाला तो पॉलिटिशियन नहीं होगा पूरे देश में। ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। नहीं नहीं, ਸੋ पावर ਇਸ ਕਰਕੇ पावर तो परमात्मा की है जी, पावर। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ना 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 जी, कॉन्फिडेंस और पावर परमात्मा की होती है और किसी की नहीं होती। ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ। ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।